Good morning, dear students. So today we will continue with exponential and logarithmic limits. Last class we discussed couple of questions based on exponential. So today we will continue with exponential and logarithmic. So all of you well versed with these formula. Limit x tends to 0, a to the power x minus 1 upon x is log a. Then second one is limit x tends to 0, e to the power x minus 1 upon x is 1. Third is 1 limit x tends to 0, 1 plus x to the power 1 by x is e. And fourth result is limit x tends to 0, log 1 plus x upon x is equal to 1. So based on these four formulas, we have this exercise 7.6. So we'll start with the first problem from your textbook, exercise 7.6. Look at this. The question is, this is type 1 and question number 1. Limit x tends to 0, 9 to the power x minus 5 to the power x upon 4 to the power x minus 1. We have to find the value of this. So while looking the question, it looks that we have to use this first result, fine. So we will use this first result. How we will use? Look at here. Limit x tends to 0. See, a to the power x minus 1. So 9 to the power x और हमने -1 एडजस्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे -5 टू द पावर x ऑलरेडी है माइनस, और ये +1 वी हैव एडजस्टेड बिकॉज -1 हमने यहाँ रखा तो +1 इधर बैलेंस करना होगा अपॉन 4 टू द पावर x -1। फाइन, ये हमने +1 और -1 एडजस्ट किया, बट अगर तो देखा जाए तो अपॉन x भी है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power x minus 1 upon x. So we have to divide न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें x से डिवाइड करना होगा. So here you can take minus common also. ये 5 to the power x minus 1 हो गया, ब्रैकेट में ले लिया, एंड ये भी डिवाइडेड बाय x. और लिमिट की प्रॉपर्टी से यहाँ भी लिमिट टेंड्स टू 0 कर लिया, and 4 to the power x minus 1 again divided by x. ठीक है, यहाँ भी आपने न्यूमरेटर में x से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया तो बैलेंस हो गया, x और x कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टेप अच्छे से समझिए। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया, so -5 to the power x becomes plus, and ये +1 it becomes -1 because minus we took common, ठीक है। Now from here limit x tends to 0, this is x tends to 0, अब इसको भी सेपरेट कर लीजिए, 9 to the power x -1 upon x, और ये माइनस बीच में था, यहाँ पे फिर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू, हम यूज कर सकते हैं fx माइनस gx में लिमिट को, में भी लगाया, gx में भी लगाया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 to the power x -1 upon x, एंड इन डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है, लिमिट x tends to 0, 4 to the power x minus 1 upon x. Now everything came into in the formula. जो फॉर्मूला यहाँ है अपने पास, x tends to 0, a to the power x minus 1 upon x, which all of you know this is log a. This is the formula. अब आप इस फॉर्मूला की हेल्प से what we can write here for the first formula, first result क्या हो जाएगा, limit x tends to 0, 9 to the power x minus 1, ये आ जाएगा log 9 minus ये आ जाएगा log 5, and denominator में we will get log 4, correct. This is the situation because 4 to the power x है तो log 4. अब आप log की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, log m
minus log n. All of you know what it is, log m upon n. ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. दिस इज log 9/5 upon log 4. यहाँ तक लाके आपने छोड़ देना है. दिस इज आंसर. अब इसमें log m by log n कोई फॉर्मूला नहीं है. यहाँ आप या तो बेस चेंज बना सकते हैं या आप ऐसे ही छोड़ दीजिए. दिस इज द आंसर ऑफ योर टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. So what we have done, all of go through once again. -1 +1 एडजस्ट किया यहाँ, फिर अपने -1 कॉमन ले लिया, फिर x से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, देन वी सेपरेटेड, माइनस लेके लिमिट की प्रॉपर्टी लगाई, दो रिजल्ट में ऐसे दो रिजल्ट बन गए, नीचे लिमिट x टेंड्स टू 0. Now these all came with the help of this formula, log 9 minus log 5 upon log 4, and then log की प्रॉपर्टी यूज करी, and with the help of this log property, log 9/5 upon log 4. This is the answer. Now we will move to our next problem. Look at this. अच्छे से समझिए, कॉपी कीजिए, और इस तरह के सम अगर मैं अभी दूं तो होमवर्क में यू विल बी एबल टू डू such type of sum. Look at this. Next problem आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 1. This is limit x tends to 0, 5 to the power x plus 3 to the power x minus 2 to the power x minus 1 upon x. फाइन. तो हमें फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना है, और इनफैक्ट सामने लिख के ही रखना है. द फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 upon x log a. यानी हमें a to the power x minus 1 को फॉर्म लाना ही लाना है. यहाँ पे मुझे एक -1 दिख रहा है, मैं इसमें भी एक -1 करूंगा और इसमें भी -1 एडजस्ट करना होगा. नीचे तो x है, इस बार सेपरेट करते समय सभी को टर्म को डिवाइड कर देगा x. लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 to the power x -1 डाल दीजिए, प्लस 3 to the power x, एक और -1 यहाँ लगेगा, एंड देन वी हैव -2 to the power x. हमने -2 ऐड किया है, और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है. -1 -1 -2, तो +2 हमें बैलेंस करना पड़ेगा, एंड दिस इज अपॉन x. ठीक है. -1 -1, तो +2 हमने ऐड किया, यहाँ ऑलरेडी एक -1 है. नाउ लुक एट दिस. लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 to the power x minus 1 plus 3 to the power x minus 1. और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, ये हो जाएगा 2 to the power x, और ये -1 + 2 +1 हुआ, माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये -1 हो जाएगा. ठीक है. डिवाइडेड बाई x. क्लियर. यहाँ माइनस लेने से ये हुआ कि ये जो -1 + 2 था, इट बिकम्स -1. जब आपने माइनस कॉमन लिया, +1 हुआ, ये +1, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया -1, माइनस कॉमन ले लिया. नाउ वी विल सेपरेट लिमिट, एक एक रिजल्ट में यूज कर लेंगे. 5 to the power x minus 1 upon x, यहाँ लगा दिया एक लिमिट, दूसरा एक लिमिट यहाँ भी लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 to the power x minus 1 upon x, ये माइनस है. लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 to the power x minus 1 upon x. में डिवाइड हो जाएगा. ये तो हमें सबको पता है, अलजेब्रा a + b + c अपॉन x है, तो आप इसको लिख सकते हो ना, a/x plus b/x
प्लस सी बाई एक्स, ये तो अलजेब्रा है, आई बिलीव आपको पता है इस तरह की अलजेब्रा। तो इस तरीके से एक्स एक्स हर एक टर्म को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ वी हैव फॉर्मूला, ये आ गया log 5, फॉर्मूला आ गया ना e to the power x minus 1 upon x, which is log e. This is log 3 and minus this is log 2, ये log 2 आ जाएगा। अब ये log m plus log n, log m into n, हमने log m into n कर लिया, माइनस log 2, फाइन। अब ये बच गया, बन गया अपने को log 15 माइनस log 2। ये आपको जरूर करना होगा क्योंकि log आपको सिखा दिया गया होता है, तो यू मस्ट टू यूज दिस प्रॉपर्टी। log m माइनस log n, log m माइनस log n, हम क्या लिखते हैं log m अपॉन n, so log 15 upon 2 is the answer for this problem। अच्छे से गो थ्रू कीजिए, एडजस्टमेंट करना पड़ा +1 -1 and then separated and then we have used the formula। एंड में लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज करना कंपल्सरी है डियर। आप यहाँ तक ऐसे छोड़ेंगे तो दे वोंट गिव मार्क्स। ये यहाँ तक कई बच्चे इसको छोड़ते हैं, बट आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू हैव टू गो फर्दर। एनडीए में आपको ये ऑप्शन दिया होगा या आप एग्जाम में भी यहाँ तक आपको लाना है, ठीक है। So now we'll move take the other question। Next question I am taking, this is question number 3। Limit x tends to 0, e to the power x plus b to the power x plus c to the power x minus 3 upon sin x। तो रिजल्ट को देखने से ये तो क्लियर हो रहा है कि एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा एक्सपोनेंशियल का, लिमिट 0 e to the power x minus 1 upon x which is log e, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी दिख रही है sin x, इसको क्या करना होगा sin x अपॉन x, भी ये 1 होगा, ठीक है। तो रियलाइज हो रहा है ये दोनों फॉर्मूला देखने से हमारा अपॉन एक्स मिसिंग है, ऊपर में भी और नीचे में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो सबसे पहले हमें वो काम कर लेना होगा, न्यूमरेटर में भी एक्स से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी एक्स से डिवाइड। और ऐसा करने से पहले ये -3 को हमने -1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। -1 -1 डिवाइड बाई एक्स लेंगे, फिर यहाँ लिमिट लगाएंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आप ये ऊपर नीचे कैसे लगाते हो, ये हमने रूल पढ़ा ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर होता है तो आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स पे भी लगा सकते हैं। ये हमने रूल्स ऑफ लिमिट में देखा था। so now लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin x अपॉन x, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में x से डिवाइड किया हमने तो यहाँ भी x से डिवाइड करना पड़ा, तभी बैलेंस होगा। अब आप सेपरेट कीजिए, इसके बाद क्लियर है आपको लिमिट सेपरेट करना होगा। लिमिट x टेंस टू 0 e to the
पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, फिर यहाँ लिमिट अप्लाई कीजिए। प्रॉपर्टी है लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है तो एफ एक्स में भी लगता है और प्लस जी एक्स में भी लिमिट लग जाता है। ये बी एक्स बी टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सी टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, तो फॉर्मूला ही आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बिकम्स वन। ठीक है, दिस बिकम्स न्यूमरेटर में हमें फॉर्मूला की हेल्प से क्या क्या मिलेगा, लॉग ए, ये मिल जाएगा लॉग बी, ये आ जाएगा लॉग सी। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये क्या हो जाता है, लॉग ए बी सी, प्रोडक्ट हो जाता है। पता है हमें रूल, लॉग एम इंटू एन इंटू पी, तो आप इसको क्या लिखते हो, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। तो अगर ये दिया हुआ है तो वी कैन राइट दिस। ठीक है, log m प्लस log n प्लस log p दिया है तो आप इसको log m इंटू n इंटू p भी लिख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। ठीक है, so log abc is the final answer of this sum। पहले माइनस वन एडजस्ट किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया, एंड देन वी सेपरेटेड, एंड देन वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला। Now we will move to our next problem. Look at this. Question number 4 of type 1. Limit x tends to 0, 6 to the power x plus 5 to the power x plus 4 to the power x minus 3 to the power x plus 1 divided by sin x। प्रीवियस सम की तरह ही है, इनको भी न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करना होगा, माइनस वन माइनस प्लस माइनस एडजस्ट भी करना होगा। सेम स्ट्रेटजी वी विल फॉलो लाइक इन जो ऊपर के सम में किया था हमने। ठीक है, नाउ let us start with the solution। limit x tends to 0, 6 to the power x माइनस वन, एक यहाँ दीजिए, प्लस 5 to the power x, एक माइनस वन यहाँ भी लगेगा, प्लस 4 to the power x माइनस वन, वी हैव टू ऐड हियर आल्सो। हमने माइनस थ्री एडजस्ट किया, माइनस थ्री टू दी पावर एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे हमें प्लस थ्री ऐड करना पड़ेगा, तभी ये माइनस थ्री और प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा। अब हम डिवाइड भी कर देते हैं, हमने ये तो माइनस वन एडजस्ट किया और प्लस थ्री एडजस्ट हुआ, वी डिवाइड बाई एक्स ऑल्सो, एंड डिनोमिनेटर में भी लिमिट लग जाएगा। ये प्रॉपर्टीज तो आप वेल वर्स हो गए हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी एक्स से डिवाइड हो। अब सेपरेशन की बारी है, सेपरेट करेंगे एक एक टर्म को और लिमिट लगाते जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 6 to the power x minus 1 upon x प्लस, बीच में प्लस है यहाँ, दिस इज प्लस, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 to the power x minus 1 upon x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 to the power x minus 1 upon x। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं और 3 to the power x plus 1 का मतलब क्या है डियर, 3 to the power x into 3, ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 to the power x plus 1 को 3 to the power 1। तो यहाँ पे हमें 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस थ्री,
क्या मिलेगा ये अपने को 3 to the power x, ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा -1, ठीक है, 3 to the power x -1, और यहाँ पे भी लिमिट लगा दीजिए, ये x इधर भी डिवाइड कर दे, नीचे हमारा ये कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, दिस बिकम्स 1। तो आप लिखें या नहीं लिखें दैट इज सेम, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया तो न्यूमरेटर केवल रह गया। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा दें, ये आ गया log 6 प्लस दिस इज log 5 प्लस log 4 माइनस 3 कांस्टेंट है, ये 3 ये बाहर चला गया, और यहाँ पे मैं लिमिट लिख के दिखाई दूँ सो दैट आप फिर फॉर्मूला लगा लेना, 3 to the power x -1 अपॉन, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ, 3 to the power x -1 अपॉन x, मैंने कांस्टेंट को बाहर 3 निकाल लिया, ठीक है, तो इसको जरा ढंग से लिख दो तो क्लियरिटी होगी, 3 to the power x -1, ठीक है, 3 कांस्टेंट बाहर कर लिया, इतने दूर तक तो log m प्लस n प्लस log p ये इंटू में आ जाएगा, log m इंटू n इंटू p, 6 इंटू 5 इंटू 4 आ गया, माइनस 3 इंटू ये आ जाएगा log 3, because this is the formula limit x tends to 0, a to the power x -1 हर जगह यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला, दिस इज log a, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना हर जगह, सो यहाँ पे भी log 3 आ गया। अब देयर यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं log 120 माइनस ये 3 को इसके पावर पे डाल दीजिए, पावर रूल 3 to the power 3, because we know that log m to the power n क्या होता है n log m, ये n जो इंटू है ये पावर में चला जाता है, हाँ? तो हमने ये जो इंटू था इसको हमने पावर पे डाल दिया, log m to the power n, now log 120 माइनस log, ये कितना हो गया 3 to the power 3 is 27, फाइनली log m माइनस log n यूज कर लेंगे, वो होता है log m अपॉन n, 120 अपॉन 27, इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो log 40 अपॉन 9, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर, क्लियर। फॉर्मूला लगाइए, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज को यूज करें, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, और रूल्स एंड formulas all of you know, and with the help of formulas you will be able to get the final answer log 40 by 9. +3 एडजस्टमेंट, -1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ, फिर हमने सेपरेट किया, and then we have used the formula of a to the power x -1 upon x, which is log a, so log 6 plus log 5 plus log 4, -3 मैंने यहाँ कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ पे इस टर्म में -3 भी टू कॉमन, तो -3 बाहर रखा है, ये -3 इधर है, लिमिट मैंने बाद में फिर लगा दिया है, 3 to the power x -1 on x, ये टर्म देखिए यहाँ पे, और ये फिर log 3 बन गया, 3 बाहर है, 3 इंटू लॉग 3, और इस पावर रूल से इसके पावर पे भेज दिया, ये n इंटू है यहाँ, तो ये पावर पे चला जाता है, m to the power n, ये हो गया 3 to the power 3 which is log 27, and finally log m minus log n log m upon n, फिर 3 से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 40 अपॉन 9, so now we have seen these 4 questions of type 1, look at the fifth one also, type 1,
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 8 to the power sin x minus 2 to the power tan x, correct, upon e to the power 2x minus 1. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखने से हमें क्या रियलाइज हो रहा है कि एक तो फॉर्मूला x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला लगाया जाएगा, विच इज log a होगा, जो हम प्रीवियस सारे सम्स में यूज हो रही है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, विच इज 1। e टू आर 2x दिख रहा है, बैलेंस करेंगे वो। चलिए, so we'll start with this problem to look at this limit x tends to 0, 8 to the power sin x, यहाँ पे एक माइनस 1 देंगे और माइनस 2 to the power tan x, और यहाँ एक प्लस 1 एडजस्ट करेंगे। ठीक है, पहला काम ये हो गया, 8 to the power sin x माइनस 1 माइनस 2 to the power tan x प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे चक्कर है कि आप x तो लगेगा ही अपने को, क्योंकि e टू आर 2x भी है, इसके नीचे x होता है। तो अब चलिए दिस टाइम यू डिवाइड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1, इसको भी हमने x से डिवाइड कर दिया, सो दैट x x कैंसिल भी हो जाएगा, दिस विल बी बैलेंस्ड। ठीक है, फॉर्मूला भी लाना है अपने को। नाउ अब आप इसको सेपरेट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 to the power sin x माइनस 1 अपॉन, अभी देखो फॉर्मूला में क्या था, a to the power x माइनस 1, ये जो क्वांटिटी यहाँ x होती है वही x यहाँ भी होना चाहिए, तभी log a लिखते हैं हम, और x टेंड्स टू 0 भी होना चाहिए, 0 भी बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे sin x है तो अपने को यहाँ sin x लाना ही पड़ेगा, और ये फॉर्मूला इसलिए बन जाएगा क्योंकि x टेंड्स टू 0 तो sin 0 भी 0 होता है। ठीक है, ये हमने बैलेंस किया, तो इतना बैलेंस अपने को यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये x कहाँ गया, तो ये x यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो गया माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये रह गया 2 टू द पावर tan x, ये बन गया माइनस 1, प्लस है ना, प्लस 1 है यहाँ, माइनस हमने कॉमन लिया तो ये माइनस, डिवाइड बाई क्या करेंगे, tan x, जो यहाँ 2 के ऊपर जो पावर है वही tan x यहाँ भी होना चाहिए, इतना हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा tan x, और ये जो x है जो दोनों टर्म को डिवाइड करेगा वो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x है, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x बनाना पड़ेगा। ठीक है, x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो हमने 2 यहाँ बैलेंस किया तो यहाँ 2 इंटू करना पड़ेगा, करेक्ट। अब हमारा सारा कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। ठीक है, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1, तो x की जगह 2x है तो x टेंड्स टू 0, तो 2x भी तो 0 हो जाएगा ना, x अगर x को 0 डालोगे तो x 0 हो जाता है, तो 2x भी 0 हो जाएगा, यानी फॉर्मूला वैलिड है, हम लगा सकते हैं, इसके लिए हम 1 लिख देंगे। चलिए ऊपर आते हैं, तो यहाँ भी x है तो यहाँ भी लिमिट लगा सकते हैं, x टेंड्स टू 0, क्योंकि x जहाँ होता है वहाँ वहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉलो करेगा, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लिमिट लगा दिया, ये ऊपर हो गया log 8, ये तो लिमिट x टेंड्स टू sin x by x 1 होता है, माइनस, ये हो गया log 2, 2 to the power 8 माइनस 1 अपॉन 8 है, 2 to the power 8 माइनस 1 अपॉन 8 है, 1 अपॉन 8
जीरो tan x by x भी 1 होता है, नीचे ये 1 हो गया फॉर्मूला से, e to the power x minus 1 upon x इस फॉर्मूला से, वहाँ 2x था तो नीचे भी 2x लाना पड़ा, दिस इज 1 into ये 2, अपने पास रह गया log 8 minus log 2 divided by 2। आप log m minus log n बना सकते हैं इसको, log m upon n हो जाएगा, 8 by 2, और ये 2 तो डिनोमिनेटर में है, दिस इज 1 by 2 log 4, दिस विल बी द आंसर। आप इसको चाहो तो ये 1/2 को इधर भी भेज सकते हो, log 4 पे पावर 1/2 कर दो, 4 पे पावर 1/2 का मतलब क्या है, √4, √4 क्या होता है 2, तो ये log 2 इज द फाइनल। So dear students, you have seen these 4-5 problems in type 1 where you have to use the formula, fine, कैसे बैलेंस करना है, जो भी यहाँ x है अगर, तो यहाँ भी x होना चाहिए, अगर यहाँ sin x है तो यहाँ पे भी sin x होना चाहिए, जो हमने यहाँ देखा 8 to the power sin x minus 1, तो हमने sin x यहाँ बैलेंस किया और यहाँ भी sin x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया log 8, इसी तरह यहाँ बन गया log 2, tan x बैलेंस हुआ, और sin x by x, लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 आ गया, एंड लिमिट x टेंस टू 0 tan x by x इज 1, ठीक है, और लिमिट e to the power x upon x, दिस इज ऑल्सो 1, रह गया ये तो log 8 हो गया, एंड दिस इज log 2, which is I have written here log 8 minus log 2 upon 2, और फिर आप log की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। आई एम श्योर दैट इफ यू डू प्रैक्टिस, आप जरूर इस टॉपिक में बहुत अच्छा कर जाएंगे, एंड इट्स इम्पोर्टेंट वन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सी, आपकी पढ़ाई का उद्देश्य ही होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक कर सके, ठीक है, टेक्स्ट बुक के तो सम आप कर ही रहे हो, इसका पर्पस है कि आप जितने सम्स कर रहे हैं उनके उसमें आपको स्पीड अच्छी बनानी है, और माइंडसेट होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं अगर ये समझ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को भी मैं कर सकता हूँ। नाउ वी विल डिस्कस टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to the power x plus 3 to the power minus x minus 2 upon x tan x, x tan x, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये देखिए ये 3 to the power माइनस आ रहा है, 3 to the power minus x को आप क्या लिख सकते हो, 1 upon 3 to the power x, ठीक है, तो सबसे पहले इस माइनस को आपने पॉजिटिव करना होगा, करेक्ट, देन वी विल सी, और ये x tan x है, x डिनोमिनेटर में x tan x है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ये क्या मिलेगा, tan x बाई एक्स, एक x और ये एक x कैंसिल होगा, तो मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये भी दिमाग में सोच के रखना है, तभी ये tan x बाई एक्स 1 बनेगा, फाइन। ऑब्जर्व करते हैं क्या हो सकता है, लुक एट हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to the power x plus 1 upon 3 to the power x, ये माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई x tan x। अभी तुरंत मैं एक्स स्क्वायर से नहीं डिवाइड कर रहा हूँ, पहले न्यूमरेटर को हम सेट कर लें, फॉर्म में ले आए, देन वी कैन हैव डिवीजन बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0
एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x अपॉन ये 3 टू द पावर x नीचे गिर गया इंटू x tan x। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। 3 टू द पावर x एलसीएम लिया जो डिनोमिनेटर में आ गया। अब देयर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x, ये प्लस 1 एंड में लिख दिया डिवाइडेड बाई x tan x। अब आप बोलेंगे सर 3 टू द पावर x कहाँ गया, तो आप इस पे x पे पावर 0 डाल दीजिए, ये 1 बन गया। ठीक है, तो ये 0 तो नहीं हो रहा है, 1 बन जाएगा। किसी भी नंबर पे पावर 0 करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो अब 3 टू द पावर x डिनोमिनेटर में नहीं। अब न्यूमरेटर में आप देखिए 3 टू द पावर 2x का मतलब होता है, वी कैन राइट 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पावर टू द पावर, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैंने लिख दिया 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x, 2 इंटू 3 टू द पावर x है, इंटू यहाँ 1 भी दिखा दीजिए एंड प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, वो 1 ही होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा। अब यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो एक्स tan x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, कंपल्सरी था एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तभी tan x बाई एक्स दिखेगा। सो अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ये तो हो ही गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप क्या लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ए आपका 3 टू द पावर x है और बी अपना 1 है। चेक इट, देखिए यहाँ पे टर्म को अपॉन, यहाँ क्या रह गया, एक x x कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, so, अब ये 3 टू द पावर x माइनस 1 फॉर्मूला में ही है, तो ये आ गया log 3, बट उसके पर पावर है 2, ये होल स्क्वायर में चला गया log 3 स्क्वायर और नीचे 1, log 3 होल स्क्वायर को आप कुछ नहीं करेंगे, ये होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना, 2 log 3 नहीं लिखना है, 2 log 3 वी कैन नॉट राइट। हमेशा याद रखो log m पे अगर होल n है कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये log m पे पावर n ही रह जाएगा। ठीक है, रिमेंबर ऑल दिस। So the answer is log 3 whole square only. This is the final answer. Go through करो, पहले माइनस पावर को पॉजिटिव किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, फिर यहाँ पे 3 टू द पावर x में x टेंड्स टू 0 डाल दिया, उसको 1 बना दिया और ये हमने होल स्क्वायर फॉर्मेशन डाला, 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x, ये जो टर्म है न्यूमरेटर का 1 स्क्वायर इज 1, तो ये पूरा क्वांटिटी हो गया 3 टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर और नीचे भी x स्क्वायर है, तो वो अंदर लिख लिया हमने x, तो होल स्क्वायर हो गया ये, और नीचे tan x बाई x which is 1, तो आंसर आ गया log 3, क्योंकि फॉर्मूला भी है हमारा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x log ये होता है, log 3 होल स्क्वायर। ठीक है डियर, अब यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन में, यहाँ पे tan x की जगह sin x भी डाल सकते हो, करेक्ट, ये 3 की जगह 5 भी डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाना चाहूँ
इसी टाइप में इक्वेशन ये भी बन सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 to the power x plus 8 to the power minus x minus 2 upon x into sin x। ठीक है, ये भी बन सकता है, करेक्ट। तो इस तरीके से यू कैन मेक ऐसे कई सम हो सकते हैं। लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू 0 4 to the power x plus 4 to the power minus x minus 2 upon x tan x, ऐसे भी सम हो सकता है। ठीक है, तो हर एक सम, इस तरह के सम का अप्रोच यही है कि नेगेटिव पावर को पहले जो ये माइनस एक्स है और ये जो माइनस एक्स इसको पॉजिटिव बनाइए, फिर होल स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कीजिए। ये एक्स टैन एक्स हो या एक्स साइन एक्स, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से और इसको एक्स स्क्वायर से, तभी ये एक्स बचेगा। तो साइन एक्स बाई एक्स 1 हो। आइडिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 में, सेकंड क्वेश्चन, इसको करने से पहले एक बार मैं वापस फॉर्मूला को रिकैप कर दूं। ये हमारा इस फॉर्मूला के हेल्प से बनने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स के फॉर्मूला जो होता है e। ठीक है, अब यहाँ पे जो x है, अगर 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ 5x है तो यहाँ भी इस x की जगह 5x होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x, तो 1 अपॉन 5x अगर होगा तभी ये फॉर्मूला ई मिलेगा। ठीक है, 1/5x भी होना चाहिए, जो यहाँ x है वही x यहाँ भी होना चाहिए, 5x है तो 5x होना चाहिए, देन वी कैन राइट ई। बिकॉज x टेंड्स टू 0 तो 5x भी तो 0 हो जाएगा ना, x टेंड्स टू 0 किया तो 5x ऑल्सो टेंड्स टू 0। सो इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 plus x upon 3 minus x to the power 1 by x। ठीक है, सो द सिचुएशन यहाँ 1 होता है, फॉर्मूला में इट इज ऑलवेज 1, बट यहाँ पे अपने को 3 दिख रहा है, तो सबसे पहले वो 3 को कैसे हटाएंगे आप, वो ध्यान में देना है अपने को। तो अंदर ही लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई 3, और डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन ले, क्योंकि वहां भी 1 चाहिए, ये आ गया 1 माइनस एक्स बाई 3, और इस टोटल की पावर क्या है 1 बाई एक्स, पावर इज 1 बाई एक्स। मैं इसको ठीक से लिख दूं तो क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं क्या बच गया हमारा सिचुएशन। हम इसको दो फॉर्म में ले जा सकते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स बाई 3, इस पे 1 बाई एक्स, और डिनोमिनेटर को भी एक और एक्स्ट्रा लिमिट लेके अलग कर दिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन डी एक्स रूल, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई 3 टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसको भी पावर 1 बाई एक्स है। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाइए। हमारे पास फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स, ये अगर 1 बाई एक्स पावर है तो ये हम e लिख सकते हैं, अगर 2x है तो यहाँ भी 1 बाई 2x होना चाहिए। यहाँ x बाई 3 है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स बाई 3, यहाँ कितना होना चाहिए 1 अपॉन x है ना, यहाँ x बाई 3 होना चाहिए।
ये ई होगा, हमने फोर्सिबली x/3 डाला, तो ये 1/x3 इस पावर पे डालोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ये पूरे पे ये 3 ऊपर जाएगा तो 1/3 सेट कर दिया। देखो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये 1/x बच जाएगा ना। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होती है इस तरह से। अपॉन, यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस प्लस फॉर्मूला है बट यहाँ माइनस है, तो इसको आप ब्रैकेट में -x/3 कर दो। ठीक है, -x/3 कर दिया, और उस पे पावर 1 अपॉन -x/3 करोगे, क्योंकि जो यहाँ x होता है वही 1/x आना चाहिए। अभी देखो 1 अपॉन -x/3 क्या बन जाएगा, -3/x, लेकिन है 1/x ओनली यहाँ पे, तो कितने से बैलेंस करना पड़ेगा, -1/3 से, -1/3, ये -1/3 तभी इसको 1/x बनाएगा। ठीक है, ये बैलेंस करना होगा ना, क्योंकि 1/x पावर है। अब आप इन पावर को सिंप्लीफाई करो, देखो यही बन जाएगा। अच्छे से समझिए, ये प्रैक्टिस से ही होगा और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये टोटल अब हमारा क्या बन गया, ई टू दी, ये ई है फॉर्मूला, और उस पे पावर बाहर क्या है 1/3, नीचे क्या हो गया, ये इस पे पावर पूरा ई आ गया, फॉर्मूला ई होता है। अब यहाँ -x/3 था तो यहाँ भी 1 अपॉन -x/3 है, यहाँ रह गया ई टू दी पावर -1/3, बाहर पावर क्या है -1/3, इतने दूर तक तो ई हो गया, यहाँ भी इतने दूर तक तो ई हो गया, बाहर 1/3, इधर अपॉन में -1/3, ऊपर ले जाइए नेगेटिव पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज ई टू द पावर 2/3। क्लियर, ये बैलेंस करना हम 2-3 सम करेंगे तो अभी भी आप समझ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और भी 2 सम 3 सम करने पे और भी आइडिया लगेगा। बैलेंस करिए पावर का, बस उस पर ही ध्यान रखना है। Look at this, the next problem. इसी फॉर्मेट में है, द नेक्स्ट वन, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x plus 3 फॉर्म 3 minus 2x whole to the power 2/x. This is whole to the power 2/x. फॉर्मूला तो आपको याद होगा भाई, फॉर्मूला का फॉर्म क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, 1 plus x to the power 1/x, ये माइंडसेट, ये अपने को ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो यहाँ +3 दिख रहा है, अगर मैं +3 इधर लिख दूं तो हो जाएगा काम, 3 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए विल स्टार्ट विद सॉल्विंग। ऊपर हमने 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 plus 5x/3, नीचे भी 3 कॉमन ले लिया, 1 बनाना है कंपल्सरी, 1 minus 2x/3 and whole to the power it is 2/x, 3 and 3 get। अब आप न्यूमरेटर ऊपर नीचे लिमिट लगा दें, अलग अलग कर दें, तो ये आ गया 1 plus 5x/3 and whole to the power 2/x, दूसरा लिमिट यहाँ लगा दिया डिनोमिनेटर में, x टेंड्स टू 0, 1 minus 2x/3, इस पे भी पावर आ गया 2/x, क्योंकि वो न्यूमरेटर दोनों पे पावर है ना 2/x, सेपरेट करेंगे तो दोनों पे पावर 2/x आ जाएगी। अब आते हैं यहाँ से, देखिए लिमिट
x टेंस टू 0, 1 प्लस 5x/3 है, 1 प्लस 5x बाई 3, ये पूरा x है तो इतना ही 1/x होगा, यानी 1/5x/3 होना चाहिए, अपॉन पावर यहाँ, ठीक है, 1/5x/3। लेकिन 1/5x/3 करोगे तो ये फ्लिप होके क्या होगा, 3/5x, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 2/x है, 2/x है ना बाहर पावर, 2/x कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे मैं x, ठीक है, 2/x इन द पावर, तो आपने को यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ x इंटू 10 करना पड़ेगा, तो ये 5 पूजा होगा, और नीचे 3 बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए ये बैलेंस समझिए, यहाँ पे इतना बैलेंस हमें करना पड़ेगा तो ही ये पूरा कट के 2/x मिलेगा, 2/x, ये थोड़ा यहाँ पे समझ के लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ पावर कितना, पूरे पे डाल सकते हैं 10x/3, कितना बैलेंस कर लेंगे, 10x तो है ऑलरेडी, ऑन x है तो x बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, x तो ऑलरेडी है वहाँ 2/x, 10/3 पावर बैलेंस, पावर 10/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 2/x आ गए, डिनोमिनेटर में आते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस तो लिखना ही है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, माइनस में ब्रैकेट बना लीजिए, -2x/3, और इस पे पावर 1/-2x/3, ये जो x होगा वही यहाँ 1/x होगा। अब यहाँ का बैलेंस देखते हैं, इसको रफ में लेके आते हैं, 1/-2x/3 क्या बन जाएगा डियर, -3/2x हो जाएगा। तो यहाँ 2/x है, वन 2/x तो है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/x लाने के लिए यहाँ पे अपने को 4 लाना होगा, यहाँ -3 करना पड़ेगा, तभी ये -3 कैंसिल होगा, 2 2/x, तो ये तभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तभी ये 2/x होगा, यानी हमने कितना पावर देना होगा, -4/3, ये पावर एडजस्ट करना पड़ेगा, ये है ना एडजस्टमेंट, -4/3, सो यहाँ पे आ गया e⁻10/3, ये तो पूरा e हो गया, दिस वन टोटल इज e 10/3, डिनोमिनेटर में ये टोटल e -4/3, ऊपर ले लो 10/3 प्लस 4/3, दिस इज e⁻14/3, दिस इज द आंसर। अच्छे से समझिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये बैलेंस करना सीखिए अच्छे से, और ये आप यहाँ पे मैं रफ में दिखा भी रहा हूँ बैलेंस करना, ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन बना के इस वीडियो को देखिए, एंड श्योरली यू विल फाइंड अ वेरी सिंपल। Look at the next situation. Question number 5. Limit x tends to 0, 1 plus 4x upon 1 minus 4x whole to the power 1/x, ठीक है। So सेम सिचुएशन, यहाँ 1 तो है ऑलरेडी, सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट लगा देंगे, 1 plus 4x पावर 1/x upon limit x tends to 0, 1 plus, this is minus 4x to the power 1/x, अब बैलेंस करना होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0,
1 प्लस 4x पावर 1/4x डाला, तो आप 1/4x डाल रहे हैं और है 1/x, तो बैलेंस करना पड़ेगा। कितना बैलेंस होगा? 4 पावर बैलेंस होगा, तभी 4 4 कैंसिल होके x होगा। पावर टू द पावर पावर इनटू होता है, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस माइनस 4x, ठीक है, टू दी पावर 1/-4x डाला। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ है 1/x, तो यानी -4 एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी ये माइनस +4 और 1/x पावर रह जाएगा। ये इतने दूर तो अब e बन गया, दिस इज योर e, टू द पावर 4, एंड यहाँ पे भी ये टोटल e आ गया, e टू द पावर -4, ये फिर ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, e टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर 4, ये सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, e टू द पावर 8 इज द फाइनल। आई बिलीव ये सिंपल है, आपको समझ में आया। वन वन ऑलरेडी था तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई कोई चीज कॉमन लेने की। माइनस के लिए हमने बताया आपको ब्रैकेट ले लीजिए, 1/-1 4x, और ये -4 एडजस्टमेंट होगा। नाउ विल सी द सिक्स्थ वन ऑफ टाइप 2। टू द पावर 1/3x। सो पहले तो 5 कॉमन ले लिए अंदर, क्योंकि 1 का फॉर्मूला है। फॉर्मूला एक बार फिर से यहाँ लिख दिया जाए, सो दैट आपका जर्नी आपको क्लियर होगा कि हमें ये करना है, इस फॉर्मेट पे बढ़ना है। हमने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया ऊपर, 1 प्लस 7x/5, और नीचे भी 5 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3x/5 टू दी पावर 1/3x। 5 कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट को ऊपर नीचे सेपरेट कर लें। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 7x/5 to the power 1/3x upon limit x tends to 0, 1 minus 3x/5 to the power 1/3x। ठीक है, ये आ गया 1 + फॉर्म में। अब यहाँ पे पावर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो लुक एट दिस, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस ये कितना है 7x/5, इतना ही। देखो जो ये x होता है इतना ही 1/x बनता है, तो इतना हमने 1/7x/5 किया। तो अगर आप 1/7x/5 करते हो तो ये क्वांटिटी फ्लिप होके रिवर्स होके क्या बनती है 5/7x। लेकिन यहाँ पावर क्या है 1/3x। कितना बैलेंस करेंगे, 1/3 कैसे मिलेगा अपने को? तो 1/3 लाने के लिए अपने को पावर का सेट करना पड़ेगा, यानी हमने यहाँ पे 7 और यहाँ पे 15 बनाना पड़ेगा, तभी देखो ये कैंसिल होके
5377 तो 1/3x बनेगा, ठीक है, कम 1/3x, यानी हमें टोटल की पावर 7/15 बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर आप देखो सिंप्लीफाई करो तो आपको सेम 1/3x मिल जाएगा, करेक्ट, ब्रैकेट है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस -3x/5, इतना 1/-3x/5 करना पड़ेगा। सो 1/-3x/5 क्या होगा, इसको फ्लिप करोगे 1 - 3x/5 हो जाएगा -5/3x। अब हमें चाहिए 1/3x, तो क्या बैलेंस करेंगे, 1/-5, देखो कैंसिल होके 1/3 हो जाएगा, यानी टोटल पे पावर क्या डाल दें, 1/-, -1/5, 1/-5 बोलिए या -1/5। सो अब ये टोटल तो ई है, ये भी ई है, रह गया ऊपर पावर e⁻7/15 और नीचे रह गया e⁻−1/5, ऊपर ले जाइए e⁻7/15 बेस से पावर, यहाँ माइनस से ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, फाइनली e⁻15 7 + 3 e⁻10/15, 5 2 जा 5 3 e⁻2/3, so the final answer is e⁻2/3। अच्छे से समझिए, नॉट सो डिफिकल्ट, आप सारा हल कर सकते हैं। फाइन, सो डियर दीज आर फ्यू सम्स, आज के इस लेक्चर में वी हैव टू डू दिस मच। नाउ आई एम गिविंग यू सम फॉर होमवर्क, ठीक है, सो ऑल ऑफ यू जॉट डाउन and do it sincerely. Question number 1. Limit x tends to 0, 3 to the power x minus 7 to the power x upon 5 to the power x minus 1. ठीक है, this is the first question. Question number 2. Limit x tends to 0, आपको चाहिए इसका आंसर, तो मैं आंसर भी लिख देता हूँ। आंसर विल बी log 3/7 upon log 5. Next question is limit x tends to 0, 4 to the power x plus 8 to the power x minus 3 to the power x minus 1 upon x, ठीक है। इस टाइप के सम हमने किए हुए हैं, तो आप श्योरली इन सब सम को कर सकते हैं। दिस इज सेकंड वन। थर्ड वन मैं इस टाइप में दे दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus
by 7 to the power 1 by x। इसका आंसर लिख लीजिए e to the power 2 by 7। इसका भी आंसर ट्राई कर लीजिए, whatever it will come, that is going to be the answer। चेक करके देख लेना। Correct? So this way, all these sums, all of you will try, and then इसका भी आंसर मैं लिख दूं तो ये आ जाएगा log 32 ऑन, लिख दूं अगर तो log 32 upon 3। This is going to be the answer, final answer। These are three sums that all of you try, and जो सम्स पढ़ाई गई है उनको आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए। आई एम श्योर दैट एक्सपोनेंशियल लिमिट यू विल फाइंड वेरी सिंपल। दो बार देखो वीडियो को, दो बार देख के कॉपी पेन के साथ बैठिए, उसको नोट कीजिए, फॉर्मूलाज को साथ में लिख के रखिए, and see the operation, see the method, how we are finding the values। So that is what the instruction you all have to follow, then only you will understand here। Okay, so with this note I'm going to close this session। In next class we will discuss the remaining problems of exponential, and then we will start the limit of limit infinity, x tends to infinity, that we will discuss from the next class onwards। Thank you।